टॉपिक है बेटा एक्सरसाइज 13D बेस थ्योरम। वैरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ देखो ਇਹਨੂੰ करना किवें, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ कि E1 E2 अप टू सोन E आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ देखो ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਟਰਮ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ E1 ਤੇ A, ਜਿਵੇਂ A ਤੇ B ਦੋ ਟਰਮਸ ਹੀ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਵਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ E1 E2 E3 E4 EN ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟਸ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਇਹ E1 ਨਾਲ ਮੈਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ E2 ਨਾਲ ਵੀ, EN ਨਾਲ ਵੀ, E3 ਨਾਲ ਵੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ A ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ A ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, E1 ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, E2 ਚੋਂ, E3 ਜਾਂ EN ਚੋਂ। ਅਗਰ E1 ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ E1 ਓਵਰ A। E1 ਓਵਰ A ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਉੱਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਟਰਮ। ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ A ਓਵਰ E1 ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, E1 ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ A ਅਪੋਨ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ E1, ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸੇਮ ਐਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਹੈ, ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ E1 E2 E3 EN ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ। A ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ total probability, and this probability is equals to probability of E1 into A upon E1, probability of E2 A upon E2 plus up to so on probability of EN A over EN। मतलब probability of A ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ probability of E1 over A is equal to, ਆਵਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, probability of E1 ਨਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ A ਬਟਾ E1, ਨੀਚੇ ਜਿੰਨੇ E1 E2 E3 ਹੈ ਉਨੇ ਵਾਰੀ ਟਰਮ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਬੇਟਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ E1 ਓਵਰ A ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। E1 ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਤੇ E1 E2 E3 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ A ਕੱਢਣਾ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਊਗਾ E1 ਇੰਟੂ A ਓਵਰ E1, ਨੀਚੇ ਜਿੰਨੀਆਂ E1 E2 E3 ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਜੂਗੀ ਟਰਮ। अगर बुक च लिखा होया कि टोटल प्रोबेबिलिटी कढ़नी है तो टोटल प्रोबेबिलिटी भी सिर्फ नीचे वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। हुण देखो बेटे इहदे नाल दा क्वेश्चन करते हैं, फॉर्मूला लर्न हो गया होगा तुहानूं। एक बार दोबारा दस दिंदी है कि जिहड़े सारे इवेंट्स होणगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव होणगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि कोई भी इवेंट किसी के उपर डिपेंड नहीं होगा। E1 E2 E3 EN ऑल आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब है कि अगर तुम इन्होंने सारे यूनीयन कर लोगे, कंबाइन कर लोगे तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी के इक्वल हो जाएगा। ए इज एनी इवेंट जोड़ा E1 E2 E3 EN दे विचों ही होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ओवर A E1 इंटू A ओवर E1, नीचे जिन्ने इवेंट्स हैं उन्ने इवेंट्स नाल अलग अलग हो गया। हुण देखो अप्लाई किवें करना है क्वेश्चन के उपर। क्वेश्चन नंबर 4 है बुक दे विच, वो करवा रही है। पहला क्वेश्चन नंबर 4 है कि बोल्स का क्वेश्चन है, बोल्स से बहुत सारे क्वेश्चन दिते हुए हैं, एक करवा रही है, बाकी के बहुत सारे क्वेश्चन है सारे अपने आप हो जाएंगे। देखो क्या लिखे है, बैग 1 कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स वाइल अनदर बैग कंटेन्स, सेकंड बैग है 5 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। वन बॉल इज थ्रोन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स। एक बॉल कड्डी इन्होंने किसी भी एक बैग दे विचों एंड इट इज़ फाउंड टू बी रेड। की फाउंड किया कि वो बॉल की है रेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट इट वाज थ्रोन फ्रॉम बैग 2। देखो अपन रेड बॉल कढ़नी है तो कढ़नी किहदे विचों है, फ्रॉम बैग 2 दे विचों। हुण अपने को दो बैग है, बैग 1 एंड बैग 2, बैग 1 एंड बैग 2। देखो लिखना है किवें इहनूं, बैग 1 दे विच जिहड़ियां बॉल्स है, पहला बॉल्स उपर लिख लो किहड़े कलर दियां, रेड ते ब्लैक। बैग 1 दे विच 3 रेड 4 ब्लैक है, बैग 2 दे विच भी 3 रेड एंड 6 ब्लैक है। तो E1 E2 अपने दो इवेंट्स हो गए, बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 1, बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। ए की है
जिथे भी आ वर्ड यूज हो गया इट इज़ फाउंड टू बी रेड, जो कुछ भी है डैट मीनस वो अपना ए होगा। तो ए की है कि एक बॉल कड्डी बट वो कड्डी किहड़ी रेड, इन्होंने कड्ढन लई किहदे विचों किहा आपां नूं सैकेंड बैग दे विचों। सैकेंड बैग हैगा अपना E2 वाला, तो प्रोबेबिलिटी कड्ढनी है E2 ओवर A, तो की होगा E2 अड A ओवर E2 अड, सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 A ओवर E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 A ओवर E2। अगर 3 हुंदा तो E3 नाल A ओवर E3 लगा देंगे। हुण देखो E2 की वैल्यू कितनी होगी, हुण अपने को आ सारा सॉल्व करने लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 E1 A ओवर E1 A ओवर E2 चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की है कि बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 1 तो बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, अपने को E1 तो E2 दो इवेंट्स है। E1 के आने की प्रोबेबिलिटी दो इवेंट्स के विचों कितनी है 1 ओवर 2, E2 के आने की प्रोबेबिलिटी भी दो इवेंट्स के विचों कितनी है 1 ओवर 2। सैकेंड आप फाइंड आउट करनी है A ओवर E1। A ओवर E1 का मतलब है कि रेड बॉल फ्रॉम बैग 1, रेड बॉल पहले बैग के विचों 3 है 3/7 यदि प्रोबेबिलिटी होगी। A ओवर E2 का मतलब है कि रेड बॉल फ्रॉम बैग 2, रेड बॉल फ्रॉम बैग 2 कितनी है 5 आउट ऑफ कितना हो चुका 5/11। हम जिन्नियां भी वैल्यूज आई हैं ये पुट कर दो 1/2 5/11, इन्हें सारा सॉल्व करो सिंपलीफाई करके थोड़े को आंसर मिल जूगा। आंसर बन जूगा यदा 35/68। बेटा समझ लग गया किवें करना होंगे कि जो इवेंट्स गिवन होंगे वो लिख लो, जो फाइंड आउट करना है वो लिख लो, उन्होंने फाइंड किहदे विचों करना है अपॉन जो कटना है वो नीचे लगाना होंगे तो सॉल्व करके तुहाडा आंसर आ जाएगा। थोड़ी जी मेरी आवाज़ की प्रॉब्लम है, गला खराब है, बट मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ प्रॉपर तुहानू। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर पेपर के मोस्टली आ जाता है। अ कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। कि लिखा हुआ है कि कार्ड है पैक का 52 कार्ड्स है, वो एक कार्ड कढ़ा गया था, रिमेनिंग कार्ड कितने रह गए 51, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड। आप हम 2 कार्ड कढ़ने हैं, दोनों ही की होने चाहिए डायमंड होने चाहिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड, प्रोबेबिलिटी किहड़ी कढ़नी है कि जो लॉस्ट कार्ड है वो की होगा डायमंड। हम देखो अपने को की केस में थोड़ा डिफरेंट सा क्वेश्चन है, दो इवेंट्स की बननगे। E1 का मतलब है कि लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, E2 का मतलब है कि लॉस्ट कार्ड इज नॉट ए डायमंड, या तो लॉस्ट कार्ड डायमंड होगा या लॉस्ट कार्ड अपना डायमंड नहीं होगा। ठीक है, ए की है फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स, तो ए की है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स, बट कढ़ने किस चों है लैफ्ट 51 दे विचों। हुण E1 की प्रोबेबिलिटी की है डायमंड के आन की घुमन की प्रोबेबिलिटी 13/52 तो डायमंड के ना घुमन की प्रोबेबिलिटी 52 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 13 कढ़ा देंगे 39/52 3/4। ਹੁਣ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੇ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड, लॉस्ट कार्ड इज अ डायमंड मतलब E1 यूज करके करना है अपने नू। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ओवर E1 अड हो चुका, A ओवर E1 अड हो गया, सेम दो इवेंट्स है तो नीचे दो बारी लगाता है इनू। हूँ देखो A ओवर E1 की होगा, A ओवर E1 का मतलब है कि डायमंड कार्ड अगर लॉस्ट हो चुका है, अगर क्योंकि E1 तो लॉस्ट वाला क्वेश्चन है ना, अगर डायमंड कार्ड लॉस्ट हो चुका है, टोटल डायमंड कार्ड होंगे 13, एक कार्ड लॉस्ट हो गया तो बाकी कितने रह गए 12, आप कार्ड कितने कढ़ने हैं 2, तो 12C2 आउट ऑफ 51C2। नीचे 51 तां लगाया क्योंकि इन्होंने कहा कि कार्ड ऑलरेडी लॉस्ट हो चुका है, तो रिमेनिंग तो 51 ही रह गए। इन्हें सॉल्व करके आंसर हो चुका 12 × 11/51 × 50। नैक्सट है A ओवर E2 कि अपने डायमंड कार्ड कढ़ने हैं 2 E2 दे विचों। E2 सीगा कि अपने को डायमंड कार्ड लॉस्ट नहीं होया, तो 13 कार्ड ही रह गए डायमंड, फिर 13C2 आउट ऑफ 51C2। इन्हें सॉल्व कर लिया, सारी टर्म्स जी भी आनगियां इन्हें फॉर्मूले पुट कर देंगे आप इत्थे। E1 की वैल्यू इत्थे A ओवर E1 की इत्थे भी सेम सारी वैल्यूज पुट करो, पुट आफ्टर पुट द वैल्यूज वी गेट आंसर इज 11/50। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है मॉडल बुक के विच ही है। अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रुथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स, ही थ्रोज अ डाई एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज़ 6। ये कहते एक परसन है कि चार बारी अगर वो बोलता है तो उन्होंने 3 बारी स्पीक ट्रुथ करता है, मतलब सच बोलता है। ये कहते एक परसन ने थ्रो डाई में थ्रो किया तो इन्होंने रिपोर्ट होया कि वो 6 है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ एक्चुअली अ 6। हुण देखो
गल किहड़ी हो रही है, स्पीक ट्रुथ तीन वारी, नॉट स्पीक ट्रुथ 1 टाइम। तो E1 इवेंट हो गया अपना स्पीक ट्रुथ, E2 हो गया नॉट स्पीक ट्रुथ। ए की है, इट इज़ फाउंड टू बी, इट इज़ फाउंड कि अपन की मिलिया कि वो 6 होगा जो बिगाड़ा होगा। तो ए है इवेंट वैन देयर इज 6, ठीक है। हुण E1 की प्रोबेबिलिटी है कि तीन बारी वो सच बोलता है 3/4, क्योंकि टोटल 4 बारी बोलिया। E2 की प्रोबेबिलिटी है 1/3/4 घटाओ, झूठ कितने बारी बोलिया उन्हें 1/4 प्रोबेबिलिटी का। हुण देखो उन्होंने कढ़ना है कि 6 कढ़ना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट इट इज़ एक्चुअली 6। एक्चुअली 6 का मतलब है कि ਉਹ ਵਾਲੀ प्रोबेबिलिटी कढ़ो ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਪੀਕ ਟਰੂਥ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ये 6 आए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 कितनी हो चुकी है, अगर उन्हें स्पीक ट्रुथ किया सीगा तो कितने बारी स्पीक ट्रुथ के 6 आऊगा, 6 आने का केस तो पता ही अपन को, डाई थ्रो करांगे तो 1 होंगे, तो स्पीक ट्रुथ करूगा तो 1/6 केस देगा, अगर स्पीक ट्रुथ नहीं करूगा तो 5/6 देगा। हुण जिहड़ी वैल्यूज़ आई हैं सारियां इहदे विच पुट कर देंगे, E1 A/E1, E2 A/E2 पुट करके आंसर आ गया 3/8 इज योर आंसर। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ बेटा जो क्वेश्चंस ने खुद ट्राई करने हैं, एंड इफ यू हैव एनी डाउट दैन यू कैन